Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. And listeners who are going to call us from outside Delhi, please remember you have to prefix the Delhi STD code 011 before these numbers. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में सीधे शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और अब शुरुआत में हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. Prime Minister Narendra Modi to launch digital payment solution e-Rupee tomorrow. GST collection in July crosses 1.16 lakh crore rupees. And 4 companies to launch IPOs next week. 12 companies raise over 27,000 crore in the current fiscal. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल डिजिटल भुगतान प्रणाली ई-रूपी का शुभारंभ करेंगे। जुलाई में जीएसटी का कुल संकलन 1,16,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा और अगले सप्ताह 4 कंपनियां अपना आईपीओ बाजार में उतारेंगी। मौजूदा वित्त वर्ष में 12 कंपनियों ने 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई। Prime Minister Narendra Modi will launch e-Rupee, a cashless and contactless instrument for digital payment, tomorrow through video conferencing. e-Rupee, a person and purpose-specific digital payment solution, is a QR code or SMS string-based e-voucher which is delivered to the mobile of the beneficiaries. e-Rupee has been developed by National Payments Corporation of India on its UPI platform in collaboration with the Department of Financial Services, Ministry of Health and Family Welfare and National Health Authority. The users of this seamless one-time payment mechanism will be able to redeem the voucher without a card, digital payments app or internet banking access at the service provider. The concept of electronic voucher takes forward this vision of good governance. The service can also be used for delivering services under schemes meant for providing drugs and nutritional support under mother and child welfare schemes, TB eradication programs, drugs and diagnostics under schemes like Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and fertilizer subsidies. The private sector can also leverage these digital vouchers as part of their employee welfare and corporate social responsibility program. Mr. Dhirendra Kumar, the first reaction to this e-Rupee that's going to be launched, this digital instrument, payment instrument that's going to be launched by the Prime Minister tomorrow, how important it's going to be for the beneficiaries, especially given these times of pandemic and the fact that a lot of beneficiaries of these government schemes still do not have access to internet banking or even digital payment apps? Yeah, I think this could be quite beneficial. But of course, using it requires that you must have a smartphone. And if somebody has a smartphone, then this is another mechanism. Because right now, the direct benefit transfer assumes that you must have a bank account as well, a Jan Dhan. But here is something where you can actually send 500 rupees of e-voucher and you will be able to encash by spending it in a designated place. Or, by or some other mechanism whereby you can redeem it and get the cash. So, and of course, India has been making strides. The payment system whether it be done by the fintech companies or whether it is being done by the National Payment Corporation, I think we are miles ahead of the whole world. And what has happened in the last 4, 5, 6 years is quite magical. In fact, when you look at the structure of it, the design of it, the safety of it, and the ease with which voluminous money is being remitted or transferred, if somebody wakes up after 10 years, he will find that, the whole world has changed so dramatically.
तो आपको लगता है सरलता के साथ साथ इसमें एक जो लीकेज कही जाती है वेलफेयर स्कीम्स में, उसको भी प्रिवेंट करने में बहुत सहायक होगी? जी हाँ, ये जो सारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है जिसमें आप किसी और के जरिए गए बगैर आप सीधा जिसको आप उस आदमी तक सीधा पहुंच पाते हैं, और उसके पास खाली अब फोन नंबर होना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ आधार कार्ड होना चाहिए, और जिससे कि आप उस आदमी को आप पहचान कर पाते हैं, उनकी पहचान कर पाते हैं, और इसके लिए बैंक खाता होना अनिवार्य नहीं है। अभी किसी भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए बैंक खाता हुए होना अनिवार्य था, अब नहीं है, इसके वजह से नहीं होगा इस जी। और अब आज के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से प्रताप जी, नमस्कार, स्वागत है, सवाल पूछें। नमस्ते जी, वीरेंद्र जी। नमस्कार सर, लास्ट संडे को आपने मेरे ग्रैंडसन के लिए बताया था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा तो आपको पीपीएफ की वजह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इसके लिए आपने बताया था कि मल्टी कैप में आपको लगाना चाहिए जी। तो आज आप मुझे बताएंगे कि मल्टी कैप हम लोग 5,000 रुपीज अभी इनिशियली डिसाइड किया है पर मंथ कि इन्वेस्ट करना, और आप आज बताएंगे कि मल्टी कैप में कौन सी मल्टी कैप में 5-10 साल के लिए लगा सकते हैं। और मुझे ये कहना है कि ये जो आप गाइडेंस देते हैं ना जी, ये मार्गदर्शन देते हैं ना, ये है ना पुण्य का काम है, और बहुत आपको टीम को हम बहुत आभारी है। हमारा सारा बाबू बड़ा हो जाएगा तो आप सबको मार्केट मंत्र को बहुत याद करेगा। धन्यवाद प्रताप जी आपके शब्दों के लिए। आभार आपका। आपके लिए 3-4 मल्टी कैप आप गिनाने को कहते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड। धीरेन्द्र जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा अपना पोजीशन चेंज कर लीजिए, तो आपकी आवाज थोड़ा हल्का सा कट रही है बीच बीच में। जी, अब बेहतर है जी। मुझे 3-4 फ्लेक्सी कैप फंड अगर गिनाना तो एक्सिस का फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पार्टी का फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई का फोकस्ड इक्विटी फंड, ये थोड़ा वो ज्यादा उतार चढ़ाव दिखता है इसमें, और मेरा ये एसेट का इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, ये 3-4 विकल्प है जिसमें से एक या दो फंड में आप एक तरह कोई एक आप चुनाव करें जो कि आपको नाम पसंद आता है, क्योंकि ये गेस कर पाना कि अगले 10-15 साल में सबसे बेहतर कौन सा होगा ये कहना मुश्किल है, पर मुझे उम्मीद है कि ये अधिकतर फंड अच्छा करेंगे। एक चीज मैं इनको और बताना चाहूंगा कि 2-3 साल पे आपका फंड कैसा कर रहा है इसकी जरा खोज खबर ले लें, दोबारा से एक बार इस प्रोग्राम में पूछ लें। जी। और अब हमारे अगले लिसनर हैं दिल्ली से सतीश जी, कार्यक्रम में स्वागत है, सवाल पूछें। जी, मैं वीरेंद्र जी से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने बताया कि अब ये जो डिजिटल पेमेंट के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सर थोड़ा सा और विस्तार से बताइए कैसे ये काम करेगा। जैसे वेस्टर्न यूनियन से पेमेंट मंगानी होती है तो उसमें बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है, लेकिन पेपाल से पेमेंट मंगानी हो तो उसमें बैंक अकाउंट की जरूरत है। तो आप बताइए कि भी कैसे अब आने वाले टाइम में बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होगी और कोई भी आदमी पेमेंट रिसीव कर लेगा, ये बताइएगा। धन्यवाद। ये जो सारा मैकेनिज्म है, आपके पास जब वेस्टर्न यूनियन से पैसा आता है तो किसी भी पैसे ट्रांसफर के लिए 2 चीज की जरूरत होती है। एक तो कहीं पे कोई पैसा दे और बताए कि इसको ये मिलना कैसे है, किसको मिलना है, तो और दूसरा चीज कि आपके पास कोई ऐसी जानकारी होनी चाहिए जो कि पैसा जो यहाँ आपको देने वाला है वो आपकी पहचान करे। तो वेस्टर्न यूनियन वाले केस में आपको आपकी पहचान कई बार कोड से होती है, और यहाँ पे आपकी पहचान आधार से होगी। अगर सरकार आपको पैसा दे रही है, देने वाला सरकार है और लेने वाले आप, और इसको देने का जो जरिया है क्या आप, और ये जो ई पेमेंट है अगर सरकार दे रही है तो मुझे लगता है कि बैंकों के एटीएम से भी आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। उस जो भी आपके पास वाउचर आएगा जो कि एक QR कोड होगा जिसको दिखाने से आपको पता चल जाएगा, और अब एटीएम मशीन आपको उतना रुपया दे दे। बाकी प्राइवेट एंटरप्राइजेज इसको किस किस तरीके से यूज करती हैं, जैसे आज मैं अपनी कंपनी के लिए हमारी कंपनी में मैगजीन बेचा जाता है और लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं। उनके पास 4-5 जरिया है। एक तो कि बैंक सीधा पैसा दे दें, क्रेडिट कार्ड यूज कर लें, डेबिट कार्ड यूज कर लें, और ये चौथा जरिया हो सकता है कि ई वाउचर जो कि आपके बैंक से या डेबिट होगा और आप वो ई वाउचर क्रिएट कर पाएंगे, और वो अगर आप मुझे भेज देते हैं
तो जैसे गिफ्ट कार्ड होता था, उस तरह से ये गिफ्ट कार्ड होता था, उस तरह से ई वाउचर आप कहीं पे पैसा जाएगा और इश्यू होगा, जिसको मिलेगा वो उसको ले सकता है अपना पहचान का प्रमाण देके। आइए चले कोलकाता, जहां से सुवीर बासु हैं हमारे अगले श्रोता। नमस्कार जी, सवाल पूछें। धीरेन्द्र जी नमस्कार। नमस्कार। धीरेन्द्र जी ये पूछना था, मेरा लड़का जो 5 साल है तो उसके लिए 1 लाख प्लस कुछ निवेश करना चाहता हूँ जी। तो ये कहाँ करे? फ्लेक्सी कैप फंड में करे या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में करे? तो आप और ये क्या सब एक ही फंड में पैसा डाल दें या इसको 2 फंड में या 3 फंड में इसको अलग अलग करके SIP के थ्रू से करूं? तो आप थोड़ा फंड के नाम भी अगर आप सजेस्ट करें तो अगर एग्रेसिव बोले तो उसमें कौन सा करें, और फ्लेक्सी कैप हो तो उसमें भी कौन सा फंड में करें, थोड़ा अगर बता दें तो अच्छा। जी। दोनों ही तरीके के फंड लगाते हैं, लेकिन दोनों तरीके के फंड अलग अलग आदमी के लिए उपयुक्त है। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और 3-4 साल से आप लगा रहे हैं, 3-4 साल में इस तरह के उतार चढ़ाव से अगर आप अभ्यस्त हो पाए, आपको घबराहट नहीं होती है, या उस समय घबराहट नहीं हुई जब पिछले साल मार्च में बाजार 50% अचानक 30-40% अचानक गिर गया और 2-3 सप्ताह के समय में ही, अगर उससे आपकी चिंता नहीं होती, घबराहट नहीं होती, तो आपको अग्रेसिव फंड में लगाना चाहिए, क्योंकि 5 साल के बच्चे के लिए आपके पास 10-15 साल है अगर आप पढ़ाई के लिए पैसा बचा रहे हैं तो। और 10-15 साल में अगर आप उतार चढ़ाव थोड़ा ज्यादा झेल पाते हैं तो रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन लोगों के लिए बन पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप पहली बार ऐसा लगा रहे हैं और आपको लगता है कि और मुझे शक नहीं बल्कि काफी भरोसा है कि पहली बार लगाया हुआ पैसा जब आप देखते हैं कि बहुत तेजी से गिर गया है कम समय में, तो लोग घबराते हैं और वो घबराहट काफी वाजिब। तो वैसे लोगों को तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में लगाना चाहिए, फ्लेक्सी कैप में भी नहीं लगाना चाहिए। तो लेकिन चूंकि आप ये सवाल पूछ रहे हैं बहुत बारीकी से, तो उस आधार पे दोनों तरीके का फंड आपका चुनाव। जब फ्लेक्सी कैप में अग्रेसिव में फंड में लगाए तो 1-2 फंड होना। फ्लेक्सी कैप चूंकि हर जगह लगा हुआ है, थोड़ा बेहतर तरीके से डाइवर्सिफाइड है, तो वहां पे एक फंड भी काफी हो सकता है। अभी मैं फ्लेक्सी कैप फंड बता रहा था, उनमें से कोई एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए। अगर 2-3 अग्रेसिव फंड चुनना हो तो DSP ब्लैक रॉक का मिड कैप फंड या SBI का स्मॉल कैप फंड या कोटक का इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये कुछ और विकल्प है। And our next caller is Mr. Rajagopal from Chennai. He's online. Mr. Rajagopal, welcome to the program. Please ask your question. And also switch off your radio set. Please. Dhirendra ji. जी। My question is, sir, what is the lowest value for which sovereign gold bonds can be purchased? Lowest value. एक बार आप रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन प्लीज, राजगोपाल जी। जी। Please repeat your question. Mr. Rajagopal, please repeat your question. Mr. Rajagopal, अपनी जो आपका रेडियो सेट है उसकी वॉल्यूम कम कर दीजिए, उससे बहुत एको आ रही है, और फिर अपना क्वेश्चन रिपीट करिए। Yes, sir. Madam, what is the lowest value for which sovereign gold bonds can be purchased? Lowest value for which sovereign gold bonds can be purchased? He wants to know the lowest value at which the sovereign gold bonds can be purchased. No, the price of the sovereign gold fund changes with the, the change in the price of the gold. That is what the price mechanism is. And there is also, the market is not very efficient. The price of the sovereign gold bond is determined also by the remaining time to its maturity. There are sovereign gold bonds which were issued 5 years back. The residual time period is 3 years. The other fund is, last year. So the residual time will be 7 years. So the price of the sovereign gold, and there could also be a demand-supply situation. Different issuance of sovereign gold bonds were issued in different quantity depending on the demand of the sovereign gold bonds at the then prevailing point. Some issue was 1,000 crores, some issue was 5,000 crores, so depending on that. So a lot of factors actually govern that. And depending on that, the price changes, but the biggest driver of the price change is the current situation of the gold prices. So
look at it, it will be, but the price is very much in the vicinity of, plus minus 5%. And it is very difficult to time the pick the cash, any fund, any asset, any bond at the perfect, it requires far greater degree of some magical, astrological something, ability to be able to pick at the lowest price of gold and the sovereign gold bonds as well correspondingly. अब चलते हैं सोनीपत, जहां से प्रदीप जी हैं हमारे अगले कॉलर। सवाल पूछिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। आकाशवाणी को और सभी को मेरा नमस्कार। जी प्रदीप जी सवाल पूछे। जी मैं निवेदन करूंगा पहले तो कि आप, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको हिंदी में उसका उत्तर देंगे तो आपके कृपया होगी। जी हिंदी में देंगे जी। और क्वेश्चन मेरा यह है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कल वो जो थोड़ा नाम उसका याद नहीं आ रहा है, वो जो पैसा बोल रहे हैं, ई रूपी कार्ड जो भी बोल रहे हैं, उसके बारे में बताएं। कैसे लेन देन सिंपल, जो बड़ा फोन नहीं है उसके द्वारा भी यूज कर सकता है, ये बताया जा रहा है जी। तो इसके बारे में बताएं तो आपकी कृपया होगी। इसको बहुत बात से आपको बताने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि कल ये लॉन्च हो रहा है, तभी इसका फीचर्स पता चलेगा। लेकिन जो मैं बता सकता हूँ, जितनी मुझे जानकारी, कि एक नया जरिया होगा जिसके जरिए एक दूसरे को, आज हम कई तरीके से पैसा एक दूसरे को देते हैं। एक तो रुपया होता है, आपको 10 रुपए का चीज देना है, आप आगे अपने आदमी को 10 रुपए देते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप उसको चेक देते हैं। तीसरा जरिया है कि आप उसको क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से आपके बैंक खाते से उसको ये ट्रांसफर हो जाता है। उसके अलावा जो फिनटेक कंपनीज है, पेटीएम जैसा चीज है, जो कि बहुत लोगों ने या आपके यहाँ पे आपको किसी को पैसा भेजना हो तो मनी ऑर्डर एक तरीका है, बहुत धीरे पैसा जाता है। पेटीएम एक दूसरा जरिया है। फिनटेक कंपनी इस तरह की बहुत सारी है जो पेमेंट, जिनके जरिए आप किसी को पैसा दे पाते हैं। उसके पास केवल फोन होना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति का केवाईसी हुआ रहता है, क्योंकि उसके पास आधार कार्ड। ये एक नया तरीका, एक नया जरिया है पैसा ट्रांसफर करने का। बारीकी से पता कल चलेगा लॉन्च होने के बाद। लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर निर्धारित किया जा सकता है कि आप कौन है, क्योंकि व्यक्ति को पहचान पाना बहुत जरूरी है किसी भी ट्रांजैक्शन के कंप्लीशन के लिए। और अगर आपको कोई पैसा देना चाहता है और आपकी पहचान हो सकती है, इसके लिए ये एक वाउचर होगा जो कि आपके पास पहुंचेगा, और उसको आप अलग अलग जरिए से आप उस पैसे को ले सकते हैं, या वो आप किसी को भुगतान करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी आगे बढ़ने से पहले एक खबर ले लेते हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार जुलाई महीने के दौरान सकल जीएसटी वसूली 1,16,000 करोड़ रुपए से अधिक हुई, जो अर्थव्यवस्था में तेजी से आ रहे सुधार का संकेत है, और आने वाले महीनों में जीएसटी वसूली और ज्यादा होने की उम्मीद है। जुलाई में हुई जीएसटी वसूली पिछले वर्ष जुलाई में हुई वसूली से 33% ज्यादा है। लगातार 8 महीने तक जीएसटी वसूली 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक थी, लेकिन जून में ये 1 लाख करोड़ रुपए से कम रही। कोविड प्रतिबंधों में छूट दिए जाने से जुलाई में जीएसटी वसूली फिर 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई। जुलाई में ये कुल 1,16,393 करोड़ रुपए हुई, जिसमें केंद्रीय जीएसटी 22,197 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 28,541 करोड़ रुपए और एकीकृत जीएसटी 57,864 करोड़ रुपए थी। इसमें वस्तुओं के आयात पर हुई 27,900 करोड़ रुपए की वसूली और 7,790 करोड़ रुपए की शुल्क वसूली शामिल है। And now we have our next listener online. It's Mr. Sunil from Pune. Mr. Sunil, welcome to the program. Please ask your question. हाँ मैडम, मुझे थीमेटिक जो स्कीम्स होती है जी, थीमेटिक तो उसमें हाई रिस्क होती है, लेकिन उसमें 3-4 विकल्प होते हैं जी। तो उसमें एक फंड में तो ऐसा है कि थीमेटिक एडवांटेज फंड, ऐसा भी एक फंड है जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड होता है वैसे। तो उसमें थीमेटिक एडवांटेज फंड में क्या फर्क क्या रहता है उसमें? मुझे लगता है कि आप थीमेटिक एडवांटेज फंड के बैलेंस एडवांटेज फंड से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने कभी थीमेटिक फंड मुझे पता है कि क्या होता है। बहुत तरीके के हमें पता है कि डाइवर्सिफाइड फंड क्या होता है, हमें पता है कि सेक्टर फंड क्या होता है।
थीमेटिक फंड एक तीसरा चीज है, जब आप किसी खास थीम पे, जैसे अगर कोई फंड मैनेजर बोलता है कि उसे बड़ा विश्वास है कि उन कंपनियों का जिनकी निर्भरता भारत के अब कम उम्र के आबादी के कंजम्पशन पर उसका भरोसा है और उस तरह की कंपनियों में निवेश करे, एक कंजम्पशन एक अलग थीम है। इसमें ये कोई सेक्टर नहीं, लेकिन कुछ फंड मैनेजर के प्रेफरेंस किसी पर्टिकुलर थीम, कोई इकोनॉमिक थीम पे वो आधारित है। इस तरह के और भी बहुत सारे थीम है जिन पे फंड बनाए गए। अब उसमें कहीं पे मुझे एडवांटेज वाला जो चीज है वो एक फंड, एक तरीके का फंड है जिसमें एडवांटेज आता है, वो बैलेंस एडवांटेज है। आपने सुना होगा कि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जिन्हें पहले बैलेंस फंड कहा जाता था, वो उनका टैक्स और उनका एसेट एलोकेशन भी करीब करीब इक्विटी जैसा होता है। 75% इक्विटी में लगा होता है, बाकी 25% फिक्स्ड इनकम में लगा रहता है। ये बैलेंस एडवांटेज अलग तरीके के फंड। ये एक फंड है जिसमें कि कम से कम 35% इक्विटी होगा, कम से कम 35% फिक्स्ड इनकम होगा या 25%, और इक्विटी और डेट प्रेफरेंस के हिसाब से वो उससे फंड मैनेजर उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। अभी अनुचित कहाँ पे है, कहाँ से दूर रहना, कहाँ पे लगाए रखना है, अभी उचित कहाँ है लगाए रखना और कहाँ अनुचित है लगाए रखना, उसके हिसाब से, लेकिन वो अपना पैसा लगाएगा और इसकी वजह से आपको रिटर्न में अंतर दिखेगा। तो वो अपने बैलेंस करने के तरीके से, अपने टैक्टिकल बैलेंसिंग की वजह से वो एडवांटेज आपके लिए क्रिएट करेगा। इसी वजह से इस कैटेगरी को ही बैलेंस एडवांटेज कहा जाता है। और अगर मैं आपका जवाब का बारीकी अगर सही तरीके से नहीं दे पाया हूं तो जरा मुझे उस फंड का नाम बताइए जिस खास फंड के बारे में आप पूछना चाहते हैं। जी, अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं अनुभव जी। Let's move on to the next story, which is about the IPOs that are going to come out in the next week. So amid the season of IPOs, 4 companies will issue their initial public offers next week. These 4 companies are looking to raise up to 3,614 crore rupees through IPOs. The initial public offer of Windlass Biotech, Devyani International, Krishna Diagnostics and Exaro Tiles will open on August 4th, and all the IPOs will close on August 6th. As many as 12 firms have already raised 27,000 crore rupees through the IPO route in the first 4 months of the current fiscal. In addition to this, Paytm and Nykaa are the 2 other IPOs that are in the queue. Mr. Dhirendra Kumar, of course, we're talking about IPOs. We just said that, 27,000 crores have already been raised. We're looking to, and so many companies are in the queue. But if we talk about traditional investors, they always, there is this school of thought that says that IPOs are not really the safest way, and one should always invest in companies that have that have been there for a while and which inside outside, what kind of results there are going to be. If I take an example, Zomato had a stupendous opening, but the company is yet to show any profits. So what would you advise to the listeners? Take a chance. And that is the thing to, look at it. It is not a long-term investment because, things are still clearer. And, it is very surprising that so many IPOs, in fact, the volume of the number of IPOs and the volume of amount of money to be raised by them, that itself is scary. That itself is scary. I'm getting fearful about it. The real point is that, this is all a lot of because prices are, the opening prices are high. A lot of people are trying to benefit from it. And it is almost like buying a lottery ticket. Because when you invest in IPO nowadays, the money does not leave your bank account anyway. The money just gets blocked. And the moment the IPO allotment is processed, the money gets from your account. So the money does not even leave your bank account. And if you get an allotment, you are able, it goes up by 30, 40, 50% generally in the kind of IPOs that we have seen so far. Long-term investing, my understanding of buying a stock at any time is that you are going to become a part owner of the company and want to take a long-term view. But right now, the mood has changed completely. Everybody is taking a chance and everybody is benefiting, and a lot of people are actually smiling back on this old-fashioned approach. But there is a possibility that at some point the music will stop and somebody will be left standing on the musical chair which is going on. धीरेन्द्र कुमार जी, नहीं प्लीज कैरी ऑन। जी, मैं यही कह रहा था कि एक ग्रेटर पूल थ्योरी पे
क्या है कि इस उम्मीद में खरीद रहे हैं कि अगला आदमी इन लिस्टिंग पे एक और आदमी होगा जो ज्यादा दाम पे खरीदने को तैयार होगा। मैं ये जानना चाहती थी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, जैसे आपने अभी एक इन्वेस्टर को बताया भी था, उनको अपनी चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट, उसको मॉनिटर कैसे करना चाहिए? हाउ ऑफन शुड दे रिव्यू? बिकॉज अक्सर इन्वेस्टर्स SIP करके भूल जाते हैं। सो मॉनिटरिंग के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? नहीं, जैसे निवेशक हमारे यहाँ मार्केट मंच में आते हैं और म्यूचुअल फंड के बारे में अधिकतर प्रश्न होते हैं, उन निवेशकों को तो 2-3 महीने पे अपना निवेश देखना चाहिए या शुरुआत में 1 साल में देखना चाहिए। आप 5,000 रुपये का SIP कर रहे हैं और देख लीजिए कि आपका 60,000 रुपये अगर 1 साल में हो गया है तो उस पैसे का वैल्यू क्या है, क्योंकि रोज रोज देखेंगे और बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, आप खामखा चिंतित होंगे या कई बार खुश होंगे। कई बार बाजार इतना रफ्तार से बढ़ जाता है जिस पर हमारा जोर नहीं चलता और आप उसको देख के खुश होंगे और हो सकता है तो लालच हो कि भाई इतना रफ्तार से बढ़ गया है, हम पैसा निकाल के कुछ को कुछ खर्च कर, जिससे आपका लॉन्ग टर्म जो कैपिटल का एक्यूमुलेशन है उसमें एक बड़ी बात पड़ती है। और तो पैसे को बारीकी से रोज रोज नहीं देखना ये बहुत जरूरी है आपके लिए, पेशेंटली पैसे को बढ़ते देने के लिए। जी, और अब हमारे अगले कॉलर हैं मुंबई से श्रीकांत। श्रीकांत जी नमस्कार, सवाल पूछें। सर भाई SBI ब्लू चिप फंड जी, ये आपको कैसा लगता है सर? और ये फोकस फंड क्या होता है? ब्लू चिप का अच्छा फंड है जो कि केवल बड़ी कंपनियों में ही लगाता है। और ब्लू चिप आपको पता ही है कि ऐसी कंपनी जो कि अपने सेक्टर में लीडर है, बड़ी कंपनी है, पुरानी कंपनी है और कई समय लंबे समय का इनका कंपनी है, उस तरह की कंपनियों में ये ब्लू चिप फंड पैसा लगता है और ये बहुत वेल मैनेज कंपनी है, वेल मैनेज फंड है। इसका प्रदर्शन भी काफी जबरदस्त रहा है अभी तक। शुरुआत में इसका स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हाल फिलहाल ये बहुत अच्छा है। पिछले 1 साल में 10% बढ़ा है, लेकिन उस गिरावट के बाद 3 साल में ये सालाना आपको 14% करीब रिटर्न दे पाया है। और फोकस फंड इसी तरह के फंड होते हैं। एक म्यूचुअल फंड होता है जिसमें कि फंड मैनेजर कहता है कि वो बहुत अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं करेगा, वो 10 से 20 स्टॉक में ही पैसा लगाएगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा और उसके वजह से उसे खासा फायदा होगा जब उसकी लगाई हुई कंपनियों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर गिरावट होगी तो वहां पे गिरावट भी बहुत ज्यादा होगी। जी, और चलते चलते बता दें कि मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों से 6,100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बाहर निकाली है। डिपॉजिटरीज आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में 6,707 करोड़ रुपए इक्विटी बाजार से बाहर निकाले। इसी दौरान उन्होंने ऋण बाजारों में 602 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिसके चलते कुल शुद्ध निकासी 6,105 करोड़ रुपए रही। जून को छोड़कर FPI इन सभी महीनों में शुद्ध बिकवाल रहे हैं। जून में उन्होंने 13,269 करोड़ रुपए का निवेश भारतीय बाजारों में किया था। अप्रैल में उन्होंने 9,435 करोड़ रुपए बाहर निकाले, मई में 2,666 करोड़ रुपए निकाले और जुलाई में 7,273 करोड़ रुपए की निकासी की। समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी शामिल होने के लिए आज के प्रोग्राम में। धन्यवाद। और हमारे सभी श्रोताओं का धन्यवाद इतने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। And now before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch digital payment solution e-Rupee tomorrow. GST collection in July crosses 1.16 lakh crore rupees. And 4 companies to launch IPOs next week. 12 companies raise over 27,000 crore in the current fiscal. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back with Money Matters tomorrow at 3 p.m. Do join us then. Till then, namaskar.